प्रणाम दोस्तों, वेलकम टू जासर क्लासेस. Which verb did I give you last week? You gave us go round. आखिरी में कौन सी वर्ब दी थी? चक्कर लगाना. Yes, you are right. Go round is the last word. Should I erase this? Yes sir, you should erase it. क्या मैं इसे मिटा दूँ? हाँ सर, आप मिटा दीजिए. What should be the verb for प्रवेश करना? The verb for प्रवेश करना should be enter. What should be the second form of enter? The second form of enter should be entered. And what should be the third form of enter? The third form of enter should be entered. So now, did the thief enter thereafter? Yes, the thief entered thereafter. और उसके बाद चोर घुस गया. हाँ, उसके बाद चोर घुस गया. अब हमने जानबूझ के ये किया कि ये है किताबी शब्द प्रवेश करना, और हम बोलते क्या हैं? तो पहले बजाते हैं कहीं तो हमने उसको वैसे ले लिया. अब तुम्हारे सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा कि तुम्हें ये वाला हिंदी बोलना है कि दूसरा हिंदी, जैसा तुम्हारी मर्जी. हमने जानबूझ के वहाँ चोर रखा, चोर घुसेगा इसलिए चोर रखा. Did you enter when the interview going on? अच्छा, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ हम एक कंजंक्शन बदलवा दे रहे हैं. वाइल लगा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा. WHILE, वाइल. Did you enter while the interview going on? Yes, I entered while the interview going on. क्या जब इंटरव्यू चल रहा था तब आप अंदर चली गई थी? हाँ, जब इंटरव्यू चल रहा था तो मैं अंदर चली गई थी. Let me think. तुम इधर आना. चलो इतना पर्याप्त है. What should be the verb for सच बोलना? The verb for सच बोलना should be speak truth. Speak truth. हम यहाँ से एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं. Did Mummy speak truth? Yes, Yes. answer. Yes, Manu, speak truth. What should be the second form of speak truth? The second form of speak truth should be spoke truth. Did Mummy Sir, speak truth? Yes, this spelling is not correct. T-R-U-T. Yes. Yes, Manu, spoke truth. तो Mummy ने सच बोला. हाँ, Manu. What should be the third form of speak truth? The third form of speak truth should be spoken truth. What should be the verb for खोलना? The verb for खोलना should be open. What should be the second form of open? The second form of open should be open. Did this door open automatically? Yes, this door. Yes, the door opened automatically. क्या दरवाजा पे आप खुल गया? हाँ, दरवाजा अपने आप खुल गया. Just this first. तो Yes, the बदल. door opened automatically. Yes. Door open. क्या दरवाजा अपने आप खुल गया? What should be the verb for बंद करना? The verb for बंद करना should be close. What should be the second form of close? The second form of close should be close. चलो तो देखिए. Did anybody close the window? No, no.
Did not anybody close the Sorry, door? sorry. No, nobody closed the window. तो किसी ने खिड़की बंद की? नहीं, किसी ने खिड़की बंद नहीं की। व्यस्त रहे किसी से नहीं, वो व्यस्त थी। भैया, did anybody close the door? No, not anybody closed the door. Sorry. No, तुम nobody closed the door. थोड़ा सा आगे कंप्लीट। क्या किसी ने दरवाजा बंद कर दिया? नहीं, किसी ने दरवाजा बंद नहीं किया। ओके, Unless. हैव यू रिटन द फर्स्ट वन? Yes, sir. We have done the first one. शुड आई रीड? Yes, sir. You should read. हैव यू रिटन द सेकंड वन? Yes, sir. We have done the second. शुड आई रीड? Yes, sir. डिड आई गिव यू एन इंटरेक्टिव सेंटेंस? Yes, sir. Yes, but you are someone interested in this. क्या कल मैंने आपको कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया? हाँ सर, पर आपने एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस दिया था। Which interactive sentence did I give you? You gave us what did you hear what did you? Did I give you any idiom yesterday? Yes, sir. You gave us what yesterday. Which idiom did I give you yesterday? You gave us first the first next to Have I given you drop in sometime? बच्चों, which chapter does this sentence belong? the sentence belongs to order and request. How did you recognize this is order or request? Because the sentence started first for the word. There is no subject in this sentence. There is No subject in this no sentence. subject in this sentence, and it is starting with First form of first the form of the verb. what is in In the preposition. in is the preposition. What is sometimes? Sometimes ऑर्डर रिक्वेस्ट में सबसे पहले क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, तत्पश्चात अन्य शब्द आते हैं। कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ ड्रॉप इन समटाइम? कभी खराब किसी दिन घर आइए। अब थैंक यू, तुमने इसको काफी मदद तक गैस कर लिया। नहीं तो हिंदी मीडियम के बच्चों का क्या होता है, जब तक वहाँ हाउस या हो ना दूसरे में वो घर उनका होता ही नहीं, हाउस या होम दूसरे। अब अच्छी बात ये है, ये कॉमिक्स वगैरह पढ़ते रहते तो ये इस तरह की लैंग्वेज समझते हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी नया है, लेकिन तुम स्वीकार, क्योंकि ये फट से 2-4 दिन के भीतर कहीं ना कहीं से इसको मिल जाएगा अपनी कॉमिक्स में, और ये तुम्हारे ग्रुप में शेयर करेंगे। तुम ऐड हो गए ना ग्रुप में, ये शेयर करके बहुत सारी चीज़, सबसे ज़्यादा ये शेयर करके, क्योंकि इसके पास सीधे सीधे वो उसके रूप में रहता, मोबाइल टू मोबाइल उठा के शेयर कर देती है। इसका किसी चैप्टर में सेंटेंस कोई बना के लिखा है? I meet my friend after some time. Then I said drop in some time. मैं अपने फ्रेंड से बहुत समय बाद मिली, तो मैंने उससे कहा किसी दिन आइएगा। आओ है। अब हम इसको चैप्टर वाइज कर लिए। Putin collided with Modi ji in Russia, so he said, "Drop in some time." Complete the process.
पुतिन मोदी जी से टकराए तो उन्होंने कहा, अचानक टकराए तो उन्होंने कहा कि किसी दिन घर आएगी। अब देखो, हमने कहीं वर्ग दी होगी या इसमें पढ़ी होगी कोलाइड, उसमें उठा के रख दिया। अब देखना कितना अंतर होता है। What should be the verb for अचानक भेंट होना? What should be the second form of common cross? And what should be the third form of common cross? Something common. अब देखो कितना अंतर हो जाता है। ये होता है कोलाइड, है ना? या ये होता है कोलाइड। तो जरूरत नहीं है वो सब रिकॉर्ड। अब वैसे कोई हम ट्रक को लाके उसके साथ कार तो कोलाइड करवा नहीं सकती है। तो जो हम तत्काल में उपलब्ध उदाहरण है वो दे दिए। अब हम मूल चीज की ओर बढ़ते हैं जो हम तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम पूरा राउंड चलवा दे रहे हैं, पूरा रिवीजन भी करवा दे रहे हैं, वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। कैन यू ड्रॉप इन टुमारो? Yes, I can drop in tomorrow. क्या तुम कल घर आ सकते हो? हाँ, मैं कल बना सकती हूँ। Good. Could you drop in tomorrow? Yes. Could you drop in yesterday? Yes, I could drop in yesterday. क्या तुम कल घर आ सकती थी? हाँ, मैं कल घर आ सकती थी। अब अगर हम अलग से चाहें तो अलग से लिखवा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। हम अलग से अगर लिखवाना चाहेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे घर आना। व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर घर आना? तो तुम बोलोगे द वर्ब फॉर घर आना शुड बी ड्रॉप। और ऐसे लिखोगे तभी यूज कर पाओगे। नहीं, ऐसे यूज करिए। Should he drop in day after tomorrow because I am busy? Should he drop in? समटाइम्स कर सकते। Should he drop in sometimes? Yes, he should drop in sometime. क्या उसे कभी-कभी घर आना चाहिए? हाँ, उसे कभी-कभी घर आना चाहिए। अब तुम्हें सीक्वेंस पता है? कौन सा टेंस? प्रेजेंट। सर, मैं ऐसे नहीं पहचान पाती। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे वो बता दो। डू लगाना पड़ेगा या डज लगाना पड़ेगा? जैसे हमने उससे यू लगा के पूछा, उसने उठा के यू पलट दिया, लेकिन इसने नहीं, इसने फट से सब्जेक्ट। Does she drop in? एवरी संडे। हाँ, does she drop in every Sunday? अरे तुम्हें कुछ सीट बदलने को बोला क्या? Does she drop in every Sunday? Yes, he drops in every Sunday. क्या वह हर संडे घर जाती है? Sorry. अच्छा, क्या वह हर संडे घर आती है? हाँ, मैं हर संडे घर आती हूँ। अब पास सिंपल आ रहा है।
Did your guest drop in sometime? नहीं, yesterday. Yesterday? Yesterday. Yes. Guest. Yes. Yes. They. कोई बात नहीं, तुम ले दो। नहीं, कम नहीं, वो तो ये सुविधा आपके मोबाइल पे उपलब्ध है, आपको जागृत रहना चाहिए। Yes, my relative. Sorry. तुम नहीं, तुमसे नहीं, तुम यू आर डन है ना, शी इज डन, शी इज डन। अब मजबूरी में हमें उत्तर देना पड़ेगा। ये भी इस क्लास के प्रोसेस में पूरी तरह से नहीं है, ईमानदारी से ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। इसका नुकसान हमको सामने देख कर उठाना पड़ेगा। यस, दे ड्रॉप द बस। क्या कल मेहमान आ रहे थे? कल वो लोग आए थे एंड दे सिलेक्टेड द एंगेजमेंट स्पेस। Sir, I was there. अब तुम्हें बदलना ही पड़ेगा, है ना? Will your cousin drop tomorrow? Sorry, drop. एक शब्द बदला ना। अभी थोड़ी देर पहले तुम देख रहे थे, हालांकि वो खाली बैठी थी, वहां से उठ के यहाँ तक नहीं आई थी, इसमें नहीं गया। तो आप देखो, इतना सा लेटर बदला और अर्थ कितना बदल जाएगा। थोड़ी देर पहले सब सुन रहे थे ना, गेट वाले में इतना सा शब्द बदला, सब बदल जाएगा बेटा। चलो, जब तक हम तुमसे पूछते हैं, अगला चैप्टर लेते हैं। Is Mrs. Sharma dropping in? Yes, Mrs. Sharma is dropping. Dropping? Yeah. Sorry. Come again, sir. Yes, Mrs. Sharma drop in here. Sorry. Yes, someone is dropping. Sorry. Yes, Mrs. Sharma dropping in. Yes, Mrs. Sharma is dropping in. हाँ, इस लगाने के लिए धन्यवाद। क्या मिसेस शर्मा आ रही है घर? हाँ, Mrs. Sharma आ रही है। क्या मिसेस शर्मा घर आ रही है? हाँ, Mrs. Sharma घर आ रही है। तुम्हारा बन गया? Yes, sir. पूछिए। Did your cousin drop today? Sorry. चलो, हम आगे बढ़ाते हैं। Was मोनू के दादा ड्रॉपिंग इन रेगुलरली? Yes, he dropped in. Sorry. तुम मिस हो गए। तुम Yes, he was dropping in here. Yes, he was dropping in yearly. Regular. Yes. Yes, he was dropping in regularly. क्या मोनू के दादा नियमित रूप से आ रहे थे? हाँ, वे नियमित रूप से आ रहे थे। क्या मोनू के दादा नियमित रूप से घर आ रहे थे? हाँ, वे नियमित रूप से घर आ रहे थे। Did your cousin drop in today? जी, sorry. जब भारत माता की जय हो गई, सही हो गई, तो क्या इसका सवाल? Sorry. Come again. चलो, कम हो गई। Did your cousin drop in today? Sorry. Drop in today. Sir, I Drop in today. Drop. I said. एक मिनट. Drop Drop in in. today. Correct. Drop in today. But I had dropping. I had dropping. Yes, my cousin will drop in. क्या आपकी चचेरी बहन आ जाएगी? आज नेक्स्ट ईयर। गलत हिंदी है। अभी तक कुछ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। चलो, अगला चांस हम पूछ लेते हैं। बहुत देर से तुमसे नहीं हुआ, तुमसे पूछ लेते हैं। Have all dropped in? Yes.
all have dropped in. क्या हर कोई घर पहुंच आ गया है? हाँ, हर कोई घर आ गया। ये बात फोन पे हो रही है। परफेक्ट टेंस का नंबर था, हालांकि हमें याद नहीं है कि तुम्हें को फ्यूचर कंटीन्यूअस दे दिया है कि नहीं, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। Has all the guests dropped in? Yes, they have dropped in. क्या सभी मेहमान आ गए हैं? हाँ, वे घर आ गए हैं। हाँ, क्या सभी मेहमान घर आ गए? हाँ, वे घर आ गए हैं। चलिए, अब इतना पर्याप्त है। जो लोग सो रहे थे वो हो रहे थे। So मैं who is it? रेस्ट तो I am resting. इतने सारे हैं, लेकिन वो सब अनअवेयर हैं। Will he be dropping in today? Yes, she will dropping. Sorry. तुम दे Yes, he will dropping. तुम दे दो। Yes, we will drop. अच्छा, वेरी गुड, तुम दे दो। Yes, he will dropping to Sorry. Yes, she will be dropping. Sorry. Yes, he will be dropping in yesterday. Sorry. सही। Yes, he will be dropping in today. क्या वह आज आ रहा है? क्या वह आज आ रहा होगा? हाँ, वह आज आ रहा होगा। अब इसका दूसरा तुम समझ तो गए होगे कि एक और इंग्लिश आने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इसको ऐसे भी बोलते हैं। सेम है, कोई आंसर नहीं, हिंदी सेम। इस बार चलो फिर से करवा दे। कैन द मेड ड्रॉप इन लेट? Yes, the maid. Yes, she can drop in late. कहोगे Yes, she can drop in late. क्या बाई देर से आ सकती है? हाँ, बाई देर से आ सकती है। इस बार हमने सब्जेक्ट ले लिया। अब आपको पूरा मौका मिल रहा है, क्रम से दे सकते तो दे दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे के दो। Could एक काम करें, एक मिनट में उनको अवसर दीजिए, इससे तो पिछली बार भी हो गया। कैन कक्का ड्रॉप इन टुडे? Yes, he will drop me today. sorry. Yes, Kakka can drop it today. क्या आज कक्का घर आ सकते? हाँ, आज Kakka घर आ सकता सॉरी, कैन कक्का कम ओवर टुडे? सॉरी, आई एम सॉरी, कैन कक्का कम ओवर टुडे? है। Yes, Kakka come over today. Sorry. चलो तुम भी तो ऐसे। Yes, Yes, can. he can come over today. क्या कक्का घर आ सकते? हाँ, कक्का घर आ सकते हैं। Should Munnu and Sorry. तुमसे हम पूछ लेते हैं। could कुड शेड्यूल वाली मौसी कम ओवर, बस इतना। कुड शेड्यूल वाली मौसी कम ओवर? Yes, शेड्यूल वाली मौसी could come over. क्या शेड्यूल वाली मौसी आ सकती थी, घर आ सकती थी? हाँ, शेड्यूल वाली मौसी घर आ सकती है। Should हाँ, शर्मा जी come over? बस रुक जाओ, ज़्यादा बढ़ाओ ही नहीं। Should Yes, शर्मा Sharma ji should come over. Yes. क्या शर्मा जी को कल आना चाहिए? Sorry, क्या शर्मा जी को आना चाहिए? हाँ, इसलिए तुम बढ़वा नहीं रहे। हाँ, Sharma ji को आना। अब तुम्हें डू या डस लगा ना, Do Sharma ji नहीं,
सॉरी तुम 3 का ध्यान देते हो पहले शर्मा जी रिपीट करो। दोस्तों इस क्लास में अगर आप मौलिकता नहीं अपनाएंगे तो आपको रिजल्ट देर से मिलेगा। मौलिकता यानी दिमाग से निकलना चाहिए कुछ। और हम जैसे जैसे सब्जेक्ट रख रहे हैं शेड्यूल वाली में बड़े तक का छोटे तक का, अब नॉर्मल सब्जेक्ट है यार, हम अपने रोज रोज की जिंदगी में जॉन थोड़ी बोलेंगे, राम सीता राधा थोड़ी बोलेंगे रोज रोज, है ना? बिल्कुल नॉर्मल सब्जेक्ट तो मैं आसपास का सब्जेक्ट Just you nothing, ऐसे ही, या यूं ही, स्पीकर just Sorry. just you nothing, सॉरी सर्वम just you nothing, सॉरी Just for जस्ट Just- फॉर नथिंग you. just for nothing, यूं ही है ऐसे ही, और he never scrap, scrap, बाल बचा, भाई बाल बचा, it is must have been, क्या होगा? कैट एस सी क्या do you drop, कम होगा come on, किससे पूछा? मेरे your friend, मतलब, do ठीक हो सकता है क्या आपको शायद समय चाहिए so you take some time लेना चाहिए। Do you want to take some Do you want to take some? yes I want to see, then I ask Two days. did monk came Sorry. पहले पूछना did monk came did monk come over तो दो बार आएंगे इसमें come over बस okay did monk come over यस मॉम कम ओवर Sorry. Second one. केम ओवर यस मॉम केम ओवर क्या साधु आए Sorry. घर आए क्या साधु घर आए हाँ साधु घर आए थे Thank you. पूछ बस हेलीकॉप्टर दे देते तो फायदे क्यों होते? तो कुछ डू यू कम ओवर Sorry. To ask a type of question in future's importance. फ्यूचर सिंपल विल यू कम ओवर Yes, I will come. क्या तुम घर आओगे कंटिन्यूस सिस्टम No, sorry. कुछ नहीं दे Yes. Is your broken? Sorry. नीलो वाले पूछो काल वाले तो हो Is he coming over? Yes, she is coming over regularly. क्या ये घर आ रही है? हाँ, रिया रोज घर आ रही है. बस Were they और आप जब were all of them
coming over your coming over. Yes, all them. Sorry. वो दिया तुम लोग को कम अगेन, Yes, sir. Come उसको again. यूज नहीं करना, घुल जाएगा। Divya, come again. Were all of them coming over? Yes, all of them were coming over. क्या वे सब घर आ रहे थे? हाँ, वे सब घर आ रहे थे. Some of them रखो। Some of them. Have some of them come over? बस Yes, some of them have come over. क्या उनमें से कुछ क्या उनमें से कुछ घर आए थे? हम्म, सॉरी, क्या उनमें से कुछ घर आए हैं? हाँ, उनमें से कुछ घर आए हैं. बस इतने ही मिला है। नहीं, पास्ट भी वही कहते हैं, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। I have given past perfect। Yes, sir. You have given us perfect. Had your sister, None of them रखो। had none of them come over yesterday? Yes, none of them had come over yesterday. क्या कल कोई नहीं आया था? नहीं, हाँ कल, उनमें से कोई क्या कल उनमें से कोई नहीं आया था? हाँ उनमें से कोई नहीं आया था। बस यही तक मिला है आपको। Yes. आगे बढ़ेंगे, अपन एक चैप्टर आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. अरे यार वेट, व्हाट इज रेस्ट? Idiom. इडियम। इडियम से एक फायदा तो ये होता है बच्चों की, जब तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल कॉलेज एग्जाम में अचानक कोई इडियम सामने आ जाएगी तो तुम्हें तारे नजर नहीं आएंगे दिन में। दूसरा फायदा ये होता है इडियम से सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कि सेंटेंस किस तरह से बनते हैं रियल में, है ना। एक बार हमारे साथ बोलना, लेट्स सी Let's see which which way the wind wind blows. blows. Which chapter is this sentence related? This sentence having part. एक बार हमारे साथ सब लोग बोल देना, this sentence This sentence is क्योंकि कोई अभी is खा गया, having two parts। two parts. इस वाक्य के इस वाक्य के दो हिस्से। दो हिस्से। अब बताओ। First part belongs to third person और second part belongs to प्रेजेंट सिंपल कहाँ से कहाँ तक है बताओ। the wind blows. प्रेजेंट सिंपल में दो लेटर में भी सेंटेंस पूरा हो जाता है। आई लव पूरा हो गया सेंटेंस, या आई लव वर्क, मैं काम से प्यार करता हूँ, पूरा हो गया। व्हाट इज द The article. एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट? The wind is the subject. कर्ता कौन है? The wind is the अब कर्ता जरूरी नहीं है कि कल्लू हो, मन्नू हो, पप्पू हो, गुड्डू हो। विंड भी तो सब्जेक्ट हो सकती है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ विंड? Yes, wind means वायु। हाँ, जो विंडोज से आती है वो विंड होती है, Yes, इसलिए इसका नाम विंडो है, sir. क्योंकि ये विंड को अंदर आने देती, बाहर जाने देती। विंडो है ना। Yes, sir. और इसमें से जरा सा हटा दो बिंदी विडो तो विधवा हो जाएगी। Yes, sir. ये डोर और विंडो से मिलकर बना है।
What is the helping verb here? There is no helping verb here. There is no helping verb. What is the main verb here? Blow is the main verb here. Blow is the Main main verb. verb here. What is the form of verb? First form of the verb. S क्यों लगा है? The first form of the verb singular. Because the subject is singular. वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए एस या Yes, लगाते हैं, क्योंकि दुनिया भर की सारी क्रियाएं Plural है। बहुवचन होती हैं। Yes. उनको एक वचन बनाने के लिए एस ऐसे या ऐसा लगाते हैं। होता है। जबकि दुनिया भर के सारे नाउन Singular. एक वचन होते हैं। ये एक वचन है, इसको बहुवचन बनाने के लिए ऐसे ही वन पेन टू पेन्स। ओके, तो विंड ब्लोज, हवा बहती है, ती है तेज, है ना? अरे यार आज हमें याद आया, लेकिन आज 8:16 पर कल एक काम करना बेटा, तुम लोग में से किसी को भी ध्यान रहे तो अपनी रूटीन वाली स्पीच दे देना, कल सेंटेंस बना जिसकी इच्छा, ओके सर। जिसने दे दी है, तुमने नहीं दी है तो तुम सुनना, ये दे देगी, ये दे देगी, ये कोई भी दे देगी, फिर तुम उसको सुनते और सुनने से जब तुम्हें डेली रूटीन तुम सुन लेना पहले। सुबह उठने से हम बता चुके हैं सब, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का रूटीन बताते हैं, तो उससे प्रेजेंट सिंपल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। Can you guess the meaning? Let's see which way the wind blows. चलो इतना तो हम लिख देते हैं, इतना तो हम लिख ही देते हैं, इतना तो आ गया। चलो किस दिशा में हवा बहेगी? ये तो हो गया। अब अपने को चाहिए इडियोमैटिक मीनिंग, मुहावरे का भाषा। हाँ, सेंस वही है, लेकिन अपने मुहावरे में शब्द बदल जाते हैं, है ना? जैसे दाल में काला, ये मुहावरा है। बंदा क्या क्या होता करे? है? ये मुहावरा है, वहाँ ना बंदा क्या होता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आगे होता है अब वो आ रही नहीं है। वो उधर क्या चल रहा है? चलो देखते हैं। ऊट पहाड़ के नीचे वो मुहावरा वहाँ से उसके शुरू मुंह होता में है। जीरा अब आया ना पहाड़ पहाड़ के नीचे, वहाँ से शुरू होता है। अब आया ना ऊँट पहाड़ पहाड़ के के नीचे। नीचे, और जो जीरा रख रहा है वो उसको पता होना चाहिए कि ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट से शुरू होता है। चलो देखते हैं इससे नहीं शुरू होता है ना? कितना ऊंचा कितने पानी में मैंने आपको सुना नहीं, किसी ने नहीं सुना। किस करवट बैठता है? लगा था कभी सुना ही नहीं। मैंने सर भी इसका सुना है। यूज कब करते हैं, किस सिचुएशन में? सही सवाल। सही अवसर के लिए। सस्पेंस में करने Now NATO is interfering the problem of Russia and Ukraine. शेयर And, मार्केट को यूज करते हैं। Joe Biden is also coming and interfering in a talk. Let's see which way the wind blows.
Got it? One more example. BJP is attacking on Mamta Didi. And BJP wants to capture West Bengal because BJP is having so many states under him. But she wants to have West Bengal also. So BJP is trying her level best. Let's see which way the wind. blows. बीजेपी बहुत सारे प्रदेशों में आ गई है और वेस्ट बंगाल में उसकी दाल नहीं गल रही है। तो अभी एक परिवार के कुछ सदस्यों को जला दिया या मार दिया गया। तो बीजेपी क्या कर रही है, इसका फायदा उठाना चाह रही है और चाह रही है कि वेस्ट बंगाल भी बीजेपी का हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। What is okay? Firstly, speak this, or if you want to create anything, so now you will have to find it. अभी ऐसे ही बोल दो तो थोड़ी देर बाद Let's see which way the wind blows. चलो देखते हैं हम किस करवट बैठते हैं. Let's see which way the wind blows. चलो देखते हैं हम किस करवट बैठते हैं. Let's see which way the wind blows. चलो देखते हैं वो किस करवट बैठता है. Let's see Which way the wind blows. चलो देखते हैं वो किस करवट बैठता है. Let's see which way the wind blows. Sorry. Let's see which way the wind blows. चलो देखते हैं वो किस तरह का है. Let's see which way the window blows. चलो देखते हैं. Sorry. सही तो बोल. ये है विंडो। Sorry. Let's see which way the wind blows. चलो देखते हैं वो किस करवट बैठता है. Papa bought a pen. My younger sister wants it, and my brother also wanted it as well. Let's see which way the wind blows. पापा एक पेन लाए थे, मेरी छोटी बहन से लेना चाहती थी, पर मेरे बहन को भी चाहिए ना, पर भाई को भाई को भी भी चाहिए। चलो देखते हैं वो किस करवट बैठता है. This is the best way to comprehend anything. Use it in your practical sentence and you will get it permanently. She was asking question, what is the easy meaning of this sentence? She must make one sentence so that she can comprehend the meaning of it. I gave you two examples. One, Russia, Ukraine. Second, BJP, West Bengal. You can take any example. I can give you one more example. The girl has seen the boy, but the boy has not seen the girl. So firstly, let him see the girl. Later on, let's see which way the wind blows. लड़की ने तो लड़के को देख लिया, लेकिन लड़के ने अभी लड़की को नहीं देखा। पहले लड़का लड़की को देख ले, फिर देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। अब तुम सोच रहे होगे कि लड़की ने लड़के को कैसे देख लिया। तो क्या होता है, कई बार कहीं किसी गैलरी को देखो, उसने देख लिया। जैसे सीता जी ने रामचंद्र जी को देख लिया था, रामचंद्र जी सीता जी को नहीं देख पाए, बगीचे में जब फूल चुनने गए। Samir, Yes,
India and Pakistan match was going on. Let's see which way the wind blows. What helping But India and Pakistan. मैच चल रहे थे Sorry. India and Pakistan match was going on. वर्स का है तो इस कर दो ना Is going on. Let's see which way the wind blows. वेरी नाइस इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, चलो देखते हैं वो किसका विन होता है. I am trying to activate your right brain. Let's see which way the wind blows. मैं आपके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहा हूँ. देखते हैं क्या होता है. Today's share markets. Today's share market in the end going so well. Let's see which way the wind blows going on tomorrow. आज का शेयर मार्केट अंत में बहुत अच्छा गया. देखते हैं, चलो देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है अगले दिन. Good. There are some mistakes, but they are accepted because you are speaking. I am trying to get a job. Let's see the wind. Let's see which the wind blows. Which Let's see which way the wind blows. मैं जॉब लेने के लिए कोशिश कर रही हूँ. देखते हैं वो किस करवट बैठता है. So can I? I have given written an interview. Yes. Let's see which way the wind blows. So मैंने रिटर्न भी दे दिया, इंटरव्यू भी दे दिया. देखते हैं क्या होता है. Russia asked for their payment from India, but it is swift ban on Russia. So Russia said to India to use yuan as the currency. Let's see which way the wind blows. रशिया ने हथियार की पेमेंट मांगी है, पर रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन है. अब इंडिया को रशिया ने बोला है कि युआन यूज करें. चलो देखते हैं वो किसका. She is aware of the current affairs. That's why her sentences are informative sentences. Okay. I'm giving you one sentence in present perfect. You are ready to make sentence? Yes, sir. You know what? My brother want to take a property in Maldives. Let's see which the wind blows. Sorry. Which way the wind blows. उधर से चमक रहा है. Let's see वो भी which वे way नहीं the बोल रही wind थी. सर हटा दीजिए. Let's see which way the wind blows. कोशिश चमक रहा है. तो लाइट थी. वहाँ देखते हो तो वहाँ काला दिखने लगता है. पता मेरा भाई मालदीव में प्रॉपर्टी लेना चाहता है. चलो देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है. You know, the government has removed 377 Yes, sir. 370. 370 from Kashmir. Yes, sir. The government has removed 370 from from Kashmir. Kashmir. Let's see which way the wind blows. सरकार ने कश्मीर से 370 हटा दी. देखते हैं वो किसके पास बैठता है. एक्चुअली मैं भी काश्मीर पे ही सोच रहा था. How many sentences have I given you in present perfect? Sir, can I make one? Yes, of course you can do. Yogi Adityanath have closed the Jharkhanda Have? University. Have closed. अच्छा, कितने आदित्यनाथ? Has your
योगी नाम आदित्यनाथ नाम भले उसमें 3 लेटर हैं, एक आदित्य है, एक नाथ है और एक योगी है, लेकिन आदमी एक ही है मतलब। Yogi Adityanath has closed the butcher khana in UP. Let's see which the wind blows. Sorry. Which way the wind तुम blows. सही बोल। Let's see which way the wind blows. योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बूचड़ खाने बंद कर दिए हैं। चलो देखते हैं वो किस कमर में। What is butcher? ओके, यहाँ पर गाय वाय कटती है ना। यू नो, बोलो। You know, योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ has prohibited prohibited all the slaughter houses in UP. Let's see which way the wind blows. which way the wind blows. पता पता यूपी में योगी जी ने सभी पशु बंद ग्रह पशु बंद कर दिए हैं। देखते हैं किसका बर्ड if you want to see any slaughterhouse here, do you know Baldev Bagh Yes, sir. and Sabji Mandi? Yes. The name of the place is Latkari Kapda. Sabji Mandi area is called Latkari Kapda. He knows, है ना? So if you enter from Pandey Chowk, turn left inside all the Sabji. So I think I saw. Over there is a big building, but the door is opposite side. Generally, people do not go there because this is the end of Sabji Mandi. Yes, sir. But if you go straight, you can come out in Galla Mandi. So people generally do not go right side because there is no Sabji Mandi. You can ask anybody if you go there anytime. You Butcher Khana कहाँ है? So you will find it. बदबू बहुत आती है वहाँ पे। छोटा सा दरवाजा है, बहुत बड़ी इमारत है। वहाँ मांस काटता है, बेचा जाता है। तो थोक में वहाँ से वो मांस खरीद के ले जाते हैं, फुटकर वाले, और अलग अलग जगह पे अपने स्टॉल में बेचते हैं। तो I have seen one slaughterhouse over there. गुजर खाना देखा। I also know one slaughterhouse, which is Raddi Chowk. रद्दी चौकी, yes. मतलब just वहाँ से smell was मैंने Yeah. हॉस्पिटल में भी मैं कभी ट्राई Actually, Raddi Chowki is a place of the Muslim majority. And that's why, obviously, Raddi Chowki में हो गई गुजर खाना। So, whenever you pass near Butcher Khana, slaughterhouse, you will get a bad smell. बहुत ज़्यादा गंदी थी। सब I ज़्यादा was at वहाँ पर एक मतलब मुर्गी वगैरह बेचने का एग और डरबा। हाँ तो वहाँ पे बाहर रखे जिस वैसे भी वहाँ से बहुत गंदी स्मेल। कोई लोग तो खेल में रखा के खरीद रहे हैं। नहीं वहाँ पे तो पूरी दुकान थी, वहाँ पूरा एरिया ही मतलब आप जाओगे वहाँ से संजय कुमार बुरंदी साइड से तो वहाँ पर है ना ऐसे पूरे ऑटो भर भर के ऐसे रखे रहते हैं और वहाँ चे आती है, स्मेल भी बहुत गंदी आती है। Twitter. Do you know? Tweet is a verb. Yes, sir. So, चिड़िया का चहचहा. हाँ। Birds are twittering. You can listen. Yes, Birds are twittering outside. Sound made by It's a verb. तभी वो ट्विटर उसका नाम है, उसमें चिड़िया का वो बना है इस लोगो से। Logo. Logo. कार्टून भी आता था एक वो
टॉम एंड जेरी में छोटी सी भी बर्ड है हाँ। उसका नाम ट्वीटी। आज मोदी जी ने ट्वीट किया है, हिंदी करें, आज मोदी जी चचा है। You can listen. Sparrows are tweeting outside. Yes, sir. This is the tweet of sparrow. Every animal has their Different name. different name. Like lion is roaring Lion is roaring. Yes. and elephant is trumpeting. Trumping. Dog is barking. Barking. Cat is meowing. Cat is meowing. And केजी में सिखाते हैं the dogs this. पोएम भी है ना छोटे बच्चों की, बताओ जिस भाव ऐसे होता है। Oh, the cat is छोटा वाला meowing. पोएम ना, चाची का बेटा वो बोलता है। Should I give you any sentence or should we conclude the class? Okay, let's conclude. Thank you for joining. God bless you. Take very good care of you. Bye bye. Ciao.